Hello friends, welcome back to Law in Detail. Today we'll study a very important topic of default bail जो कि है आपके सेक्शन 167 clause 2 proviso of CRPC. So let's understand firstly the meaning of default bail. So as the name suggests here, default bail is the bail which the accused gets when there is a default on the part of the investigating agency, when there is a default on the part of the police to file the charge sheet. Okay, so to file the charge sheet within a prescribed period of time. So basically, whenever the police officer or the investigating agency defaults on their duty and they are not able to complete their investigation within a period of 60 or 90 days, then the accused gets a right to default bail. सो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो देर इज़ नो लिमिट एट सच कि इन्वेस्टिगेशन कितनी दिन में कंप्लीट करनी है पुलिस को अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. बट यहाँ पे एक आपका इन ऑर्डर टू डेटर द पुलिस ऑफिसर्स सो दैट दे कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन on time, ये 60 or 90 days has been fixed, and if they're not able to complete, then the accused gets a right of default bail. So we'll see कि जो 60 or 90 days का time है, it applies in which cases. So now let's see the cases. So the 90 days period, okay, so police will get 90 days to submit charge sheet in the case where an offense involves the punishment of death, life imprisonment or imprisonment of not less than 10 years. But the police 60 days period will apply when there is any other offense that is less than 10 years. So अगर कोई भी ऑफेंस है विच इज़ लेस देन 10 ईयर्स तो पुलिस के पास 60 डेज का टाइम है इन ऑर्डर टू फाइल द चार्ज शीट. एंड इन द केस ऑफ डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट और when an offense involves more imprisonment than 10 years, then the police gets time to file within 90 days. And if they have defaulted on this time, then the accused gets a right to default bail. Now we'll see that whether default bail applies in specific or special statutes also or not. Specific or special statutes say, for example, if you take the example of NDPS. So NDPS के अंदर जो 60 और 90 डेज का लिमिट दिस इज गिवन इन CRPC, ओके, बट ये NDPS के अंदर the date for investigation, the period for investigation can be extended up to 180 days. इनिशियली तो 180 डेज होता है विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर. वैसे UAPA में इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू another 90 days. तो UAPA में total period of investigation can go up to 180 days, while in narcotics drugs it can also be extended up to 180 days. तो यहाँ पे it is not exactly 60 days, but in such special laws such as NDPS, UAPA, the 60 or 90 days period will be considered as this period. Okay, so special statutes में आपका ये period extended period consider किया जाएगा and not the original period जो कि specified है CRPC में, which is the period of 60 or 90 days. Now let's move forward and see another case which is Sanjay Dutt versus State CBI Bombay. So in this case, the court held that it is the duty of the court to inform the accused that he is having an indefeasible right to default bail, because technically the accused will be a layman. He may not be aware about the legal scenarios and the legal provisions. So it is the duty of the court that he has to tell the court has to tell the accused that you are having a right to get an indefeasible bail after the period of 60 or 90 days. So when will the court inform? So supposingly the investigation is going on, okay, and now this is the period 60 days, and in case of other offenses 90 days. So in the 60 or 90 days, so before 60 or 90 days, here anywhere here the court needs to tell that you are having an indefeasible right to get bail. So आपको bail application file कर लेना पड़ेगा 61st day पे या फिर 91st day पे. So ताकि अक्यूज पहले से प्रिपेयर है अपने बेल एप्लीकेशंस वगैरह के साथ. 60 और 90 डेज से पहले ही कोर्ट उनको इन्फॉर्म कर देगा दैट दे आर हैविंग सच राइट, ताकि उनको फैसिलिटेट कर पाए और वो 91st या 61st डे पे अपने बेल एप्लीकेशंस फाइल कर दे और बेल एप्लीकेशंस के साथ रेडी रहे. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट पीरियड इज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ 60 or 90 days. Okay, so just one thing,
सो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस. नेक्स्ट थिंग इज कि कौन सा पीरियड एक्सक्लूड करना है. ये जो 60 और 90 डेज हमने देखा, सो इसमें कौन सा पीरियड एक्सक्लूड करना है. तो फ्रेंड्स आगे वैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ. सपोजिंगली here you are arrested, okay, and here after 24 hours, within 24 hours the police takes you to the magistrate, है ना, रिमांड लेने के लिए he takes you to the magistrate. तो यहाँ ये जो डेट है ना रिमांड का, डेट ऑफ रिमांड, दिस डेट हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड. मतलब इसके नेक्स्ट वाले डेट से काउंटिंग स्टार्ट होगी आपकी 60 और 90 डेज की. Okay, I hope you have understood कि date of demand, this date needs to be excluded. This is also stated in State of MP versus Rustam by the Supreme Court. Okay, now let's move forward and see a very important question which arose during the COVID times, pandemic times का ये question है. And the question was, supposingly what happened during the pandemic times was the court were unable to function, the police agencies, the investigating agencies were unable to function properly. So supposingly after 60 or 90 days if they are approaching the court and they are saying कि आप ये जो जज साहब आप ये जो 60 और 90 डेज का जो पीरियड है ना ये आप एक्सक्लूड कर दीजिए. ओके, बिकॉज हमें टाइम नहीं मिला इन्वेस्टिगेशन करने का अच्छे से, सो प्लीज़ एक्सक्लूड द पीरियड एंड वो आप जो राइट है अक्यूज़ की वो डिफीट हो जाएगी, है ना. अगर 60 और 90 डेज एक्सक्लूड कर देगा तो अक्यूज़ की जो राइट है डिफ़ॉल्ट बेल लेने की वो डिफीट हो जाएगी. तो क्या हम ये जो इस पीरियड को कोविड के टाइम में, इमरजेंसी के टाइम में हम डिफीट कर सकते कि नहीं कर सकते. सो द कोर्ट्स इन सच केस पास्ड अ वेरी प्रोग्रेसिव जजमेंट इन सेतु वर्सेस सेतु, ऑल्सो द केरला हाई कोर्ट, द राजस्थान हाई कोर्ट एंड द उत्तराखंड हाई कोर्ट इन मोहम्मद अली वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पंकज वर्सेस स्टेट एंड Vivek Sharma versus State of Uttarakhand passed a very important point which must be noted. So it is a very important point. Listen, what the court said was that we understand that there was certain problem in completing the investigation, but you understand whenever we are granting bail, no, so there is a somewhat balance we need to do. Okay, so the balance is between the accused person's right to personal liberty. So he is having his article 21 with him because अभी तक उसका guilt prove नहीं हुआ है. He is behind the bars just on the basis of mere accusation and allegation. अभी तक उसका guilt prove नहीं हुआ है. So under article 21 he has a right, freedom of liberty है उसके पास, freedom to be released है उसके पास. So just because you people, the investigating agencies are not able to complete the investigation, हम accused की जो important right है under article 21 we cannot allow it to get defeated, right? आप समझ रहे हो ना, पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट बहुत चेरिश करती है, बहुत ऊपर रखती है. और एक तो हम उस पर्सन को ऑलरेडी रख रहे हैं विदाउट इवन हिज गिल्ट बीइंग प्रूव्ड, और हम इस पीरियड को और एक्सटेंड कर दें 60 और 90 डेज से बियॉन्ड रख लें जस्ट बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन. तो इससे तो उस बंदे की पर्सनल लिबर्टी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंड हो जाएगी, ओके, restrict हो जाएगी. So therefore court said no, we cannot exclude the period even during the COVID crisis. I hope you have understood this. Now let's understand various scenarios जहाँ पर कोर्ट आपको डिफॉल्ट बेल ग्रांट करती है. So supposingly this was the date of remand. ओके, सो दिस वाज द डेट ऑफ रिमांड और यहाँ पे 60 और 90 डेज़ का पीरियड ओवर हो जा रहा है. तो अगर ये 60-90 डेज़ का पीरियड ओवर हो जा रहा है और 61st और 91st डे पर इफ़ यू आर फाइलिंग योर बेल एप्लीकेशन, और लिसन फ्रेंड्स, बस बेल एप्लीकेशन फाइल करने से ही आपको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलेगी. अलॉन्ग विद द बेल एप्लीकेशन यू शुड हैव टू मेक श्योर कि आप वहाँ पे बेल अमाउंट फर्निश कर रहे हो, बेल बॉन्ड दे रहे हो. तो जब तक आप अमाउंट नहीं दोगे, बॉन्ड सिक्योरिटी श्योरिटी नहीं दोगे, तो कोर्ट आपको पर से रिलीज़ नहीं कर देगा, है ना. तो अगर यहाँ पे 61st और 91st डे पे आप बेल फाइल भी कर रहे हो, अमाउंट और बॉन्ड भी डिपॉजिट कर रहे हो, तो you will get bail और आपको डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी and you will be released. But supposingly another point we'll see here, supposingly कि 61st और 91st डे पे आप बस बेल एप्लीकेशन तो फाइल कर रहे हो, बट आप सिक्योरिटी
अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, है ना, बॉन्ड सबमिट नहीं कर रहे हो, बस आप बेल का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको पर से रिलीज नहीं किया जाएगा। Okay, I hope this is clear. For getting default bail, it is very important that you furnish the bail amount along with the security and surety as demanded by the court. Now let's understand another thing. Supposingly यहाँ पे आपका 98th और 68th डेज गेट्स ओवर, ओके, ये 98th 68th डेज गेट्स ओवर। अब 91st और 61st डेट पे यू आर मूविंग योर बेल एप्लीकेशन। तो बेल एप्लीकेशन तो यहाँ पे मूव कर रहे हो, और यहाँ पर आप बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, बट यहाँ पे आपने अभी तक जो अमाउंट होती है वो डिपॉजिट नहीं की, जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, और डिपॉजिट नहीं की, और यहाँ पे कहीं पर पुलिस क्या करती है, चार्जशीट फाइल कर देती है। तो अगर पुलिस चार्जशीट फाइल कर दे रही है ना फ्रेंड्स, सो अगर यहाँ पे पुलिस चार्जशीट इट हैज़ बीन ऑलरेडी फाइल्ड बाय द पुलिस, तो आपकी जो डिफॉल्ट बेल की राइट है दैट विल बी डिफीटेड। यू अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आप अमाउंट नहीं डिपॉजिट करते हो, उससे पहले पुलिस चार्जशीट फाइल कर देती है, तो आपकी डिफॉल्ट बेल की राइट हो जाएगी डिफीट। सो इसीलिए आपको चार्जशीट से फाइल होने से पहले आपको फाइल कर देना है। बट सपोजिंगली आपने यहाँ पर, आप समझो कि आपने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है ना, 91st और 61st डे पे अप्लाई भी कर दिया, अमाउंट भी आपने फर्निश कर दिया, बॉन्ड भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, है ना। लेकिन यहाँ पे पुलिस, यहाँ पर या तो आप समझ लो कि ईदर द मैजिस्ट्रेट वाज नॉट अवेलेबल, सो एट दिस पॉइंट व्हेन यू सबमिटेड एवरीथिंग मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, या फिर मैजिस्ट्रेट रेफ्यूज करते हैं पास करने के लिए ऑर्डर, मतलब समझ लो कि यहाँ पे कोर्ट की गलती है। ओके, सो मैजिस्ट्रेट वाज नॉट अवेलेबल और द मैजिस्ट्रेट रेफ्यूज टू पास ऑर्डर, और ये कंटिन्यू करता है इतने दिन तक, और इसी दौरान चार्जशीट फाइल हो जाता है। तो क्या यहाँ पे भी उस पर्सन की डिफॉल्ट बेल की राइट डिफीट होगी? नो, इट विल नॉट बी डिफीटेड, बिकॉज यहाँ पे अक्यूज्ड की कोई गलती नहीं है, वो कोर्ट की गलती है। सो अक्यूज विल नॉट बी मेड लायबल, और उसको डिफॉल्ट बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, सपोजिंगली कि 91st या 61st डे पे आपने बेल तो फाइल कर दिया है ना, और अमाउंट भी डिपॉजिट कर दिया, एवरीथिंग यू हैव डन, बट यहाँ पे आपकी बेल ऑर्डर रिजेक्ट कर देता है कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि काउंटिंग में कोर्ट से गलती हो गई है। समझना इस बात को, यहाँ पे मिसकैलकुलेट हो गया है, लेकिन ये मिसकैलकुलेट कोर्ट ने गलत मिसकैलकुलेट कर दिया है। तो फिर अगर फिर आप इस रिफ्यूज़ल के अगेंस्ट, है ना, ये जो आपको रिजेक्ट कर दी गई, इसके अगेंस्ट इफ़ यू गो इन अपील, और अपील में सपोजिंगली अब अपील में यहाँ पर जब तक अपील पेंडिंग है, ये अपील पेंडिंग है, चार्जशीट फाइल हो जाती है। तो अगर अपील पेंडिंग है, चार्जशीट फाइल हो गई, तो भी आपकी राइट डिफीट नहीं होगी, बिकॉज ऑफ द सोल फैक्टर कि यहाँ भी कोर्ट की गलती है, यू आर नॉट एट फॉल्ट, तो यहाँ पे डिफीट नहीं होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस सिनारियोज। यहाँ पे वही लिखा है फ्रेंड्स कि राइट अक्यूज की डिफीट नहीं होती है जब मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, या मैजिस्ट्रेट ने गलत तरीके से रिफ्यूज़ किया है पास करने के लिए ऑर्डर, या फिर मिसकैलकुलेशन वगैरह एग्जाम्पल्स में आप अपील या रिविजन में चले गए हो, तो वहाँ पे आपकी राइट डिफीट नहीं होगी। आपकी राइट तभी डिफीट होती है जब आप फेल करते हो फर्निश करने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट, मतलब बेल अमाउंट फर्निश करने के लिए फेल करते हो। नाउ लेट्स लुक इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस ऑफ उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे ये बोला गया था कि 167 क्लॉज 2 को यू हैव टू गिव अ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, बिकॉज यहाँ पे अक्यूज की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी इज इन्वॉल्व, है ना, एंड ही हैज अ राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, बिकॉज बेल हमेशा एक एक्सेप्शन होती है, जेल इज द रूल, सॉरी बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। तो हमेशा हमें आर्टिकल 21 का ध्यान रखना पड़ेगा, अक्यूज की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम उसकी गिल्ट प्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए कभी भी हम एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देके कोशिश नहीं करनी चाहिए कोर्ट को कि उसकी राइट डिफीट हो जाए, रादर एक पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए।
दूसरी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि बेल पर से ग्रांट नहीं होती है। 91st और 61st डे पे यू हैव अ ड्यूटी, दैट इज द अक्यूज्ड हैव अ ड्यूटी टू मूव द बेल एप्लीकेशन। और थर्डली दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपने मूव किया है ना एप्लीकेशन 91st या 61st डे पे या उसके बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन चार्जशीट फाइल करने से पहले आपको करना पड़ेगा। और जिस दिन भी आपने फाइल किया है तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि फोर्थविथ डिसाइड करें, है ना, जल्दी से जल्दी डिसाइड करें। कोर्ट उस एप्लीकेशन को लिंगर नहीं कर सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि टाइम मिल जाए पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को चार्जशीट फाइल करने का, बिकॉज वंस द चार्जशीट इज फाइल डिफॉल्ट बेल की राइट डिफीट हो जाएगी। सो द कोर्ट कैन नॉट डू दिस, और कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है फोर्थविथ। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मल बेल ऑर्डर पास करनी पड़ती है यहाँ डिफॉल्ट बेल के केस में भी। और सिक्योरिटी नीड्स टू बी फर्निश। मैंने आपको बताया कि बेल अमाउंट, सिक्योरिटी, श्योरिटी, बेल बॉन्ड, ये सब अक्यूज्ड को फर्निश करना पड़ेगा, बिकॉज अगर उसने फर्निश नहीं किया आफ्टर द 91st और 61st डे और अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो अक्यूज्ड की ये राइट डिफीट हो जाएगी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि नो रिजेक्शन। वही अगर मैंने आपको समझाया था कि अगर मैजिस्ट्रेट ने ही मिसकैलकुलेट कर लिया है, जिसके अगेंस्ट आप अपील में गए हो और अपील जब पेंडिंग है तो चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो वहाँ भी आपकी डिफॉल्ट बेल की राइट को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ रॉन्गफुल थिंग ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे गलती कोर्ट की है, नॉट द अक्यूज्ड। नेक्स्ट वील सी मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट डेप्रिकेटेड द प्रैक्टिस कि आप बेल एप्लीकेशन को पेंडिंग नहीं रख सकते हो ज़्यादा दिनों तक, इन ऑर्डर टू इनेबल द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि वो चार्जशीट फाइल कर ले मीन टाइम में और अक्यूज की डिफॉल्ट बेल की राइट को डिफीट कर दे। ओके, सो आपको बेल एप्लीकेशन फोर्थविथ डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इज कि इफ पुलिस फाइल्स इनकम्प्लीट चार्जशीट, सपोजिंगली अगर पुलिस क्या करती है कि इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल कर लेती है, मियरली क्योंकि चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो अक्यूज की राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल डिफीट हो जाएगी। तो अगर पुलिस इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल करती, बाय इनकम्प्लीट चार्जशीट हियर वी मीन कि मटेरियल्स उतने सफिशिएंट है ही नहीं टू मेक आउट अ केस अगेंस्ट द अक्यूज, फिर भी जो भी मटेरियल्स हैं दे हैव फाइल्ड इट और मैजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर दिया है ताकि अक्यूज की राइट डिफीट हो जाए। तो जब भी पुलिस ऐसा करती है तो उस केस में मैजिस्ट्रेट विल हैव अ ड्यूटी टू एग्जामिन कि चार्जशीट कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी हो जाती है और मैजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने के बाद लगता है कि इनकम्प्लीट है ये चार्जशीट, तो उस केस में भले ही चार्जशीट सबमिटेड है लेकिन फिर भी डिफॉल्ट बेल की राइट मिल जाएगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि जस्ट बिकॉज सम साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर पेंडिंग, है ना, जैसे कि डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह पेंडिंग है, तो इफ सम साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर पेंडिंग और अदरवाइज आपकी चार्जशीट कंप्लीट है तो उसको इनकम्प्लीट नहीं बोली जाएगी, जस्ट बिकॉज साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर पेंडिंग और डिफॉल्ट बेल उस केस में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द पुलिस कंटिन्यूज विथ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सो सपोजिंगली चार्जशीट यहाँ पे फाइल हो गई, चार्जशीट फाइल होने के बाद भी पुलिस अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सो आपको ये समझना पड़ेगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई बार नहीं है कि डिफॉल्ट बेल डिफीट हो जाएगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती रह सकती है बिकॉज कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो केस में अल्टीमेट जस्टिस करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो कोर्ट करने देगा। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं है कि चार्जशीट इनकम्प्लीट है, इट मीन्स कि चार्जशीट कंप्लीट है बट पुलिस को अदरवाइज ऐसा फील होता है कि हमें और कुछ बेटर एविडेंसेस मिल सकते हैं प्रोसिक्यूशन केस को स्ट्रांग बनाने के लिए, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड कर सकती है। सो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि चार्जशीट इनकम्प्लीट है इसलिए डिफॉल्ट बेल ग्रांट कर दी जाएगी। ये दोनों पॉइंट फ्रेंड्स इट हैज बीन हेल्ड इन दिनेश डालमिया वर्सेस सीबीआई बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2007. Now we'll come to another very next important case which is State of West Bengal versus Dinesh Dalmia, जिसमें ये बोला गया था कि अगर a very important question arose कि अगर अक्यूज खुद सरेंडर कर देता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट तो क्या उसको डिफॉल्ट बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस आपको ये समझना पड़ेगा 167 क्लॉज 2 है ना जो डिफॉल्ट बेल से डील करता है, इट इज कंडीशनल अपॉन 167 क्लॉज 1
और 167 क्लॉज 1 ये बोलता है कि अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाना चाहिए और प्रोड्यूस किया जाना चाहिए बिफोर द कोर्ट। ओके, सो अरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रोडक्शन बिफोर द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको डिफॉल्ट बेल मिलेगा। बट यहाँ पे अक्यूज्ड अरेस्ट हो ही नहीं रहा है बाय द पुलिस, यहाँ पे तो वो खुद आके ही सरेंडरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट। सो जहाँ पे वो खुद आके सरेंडर कर दे रहा है वहाँ पे ही विल नॉट हैव अ राइट टू गेट द डिफॉल्ट बेल। Okay, I hope you have understood this point. Now let's move forward। और ये मैंने कोविड क्राइसिस के दौरान जो केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है उस पर कुछ पॉइंट्स लिख दें। सो इफ़ यू वांट टू रीड इट यू कैन पॉज द वीडियो, आप ये रीड कर सकते हैं। आई होप इट वॉज अ गुड वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो फ्रेंड्स और आप चाहते हैं और वीडियोज़ मेरी फॉलो करना, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और कॉमेंट भी करें। थैंक यू।